کہ ڈنمارک اربوں روپے دینے کو تیار ہے مگر پاکستانی سرکار کاغذی کارروائیاں مکمل نہ کر سکی۔ فیصل آباد کی تاریخ کا بڑا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ سرکاری محکموں کی سستی کی نظر افتتاحی تختی لگی، پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا مگر 2 سال میں کنسلٹنٹ کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ سیوریج اور انڈسٹریل ویسٹ واٹر کی صفائی کا 19 ارب کا منصوبہ لٹک گیا۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈنمارک کے تعاون سے سیوریج اور انڈسٹریل ویسٹ واٹر کی صفائی کا 19 ارب روپے کا منصوبہ لٹک گیا۔ ڈنمارک حکومت اربوں روپے دینے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے عجلت میں 2019 میں افتتاح بھی کر دیا مگر پاکستانی سرکار منصوبے کی کاغذی کارروائیاں ہی مکمل نہ کر سکیں۔ مدوانہ ڈرین سے منصوبہ کی مدد سے 44 ملین گیلن سیوریج اور انڈسٹریل ویسٹ واٹر صاف کر کے آبپاشی کے لیے استعمال کیا جانا تھا، جبکہ 2 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، جتنی جلدی اس کے معاملات کو آگے لے کے چل سکیں، وہ ہمیں لے کے جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی۔ دیکھیں، اس میں کافی پروگریس ہو چکی ہے اور جلد اس کا جو ہے نا وہ 2 پروجیکٹس کا میں آپ کو بتا دوں، ایک جائکا کا پروجیکٹ ہے اور ایک یہ جو ڈینش گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، تو ان کے اوپر کافی تیزی سے کام ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جلد آپ کو گراؤنڈ کے اوپر ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایکنیکی منظوری کے بعد بھی منصوبے پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ منصوبے کے آغاز میں قلیل وقت رہ گیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ امراض قلب میں مبتلا ننھی کلیوں کی سانسیں سکڑنے لگی۔ اوپن ہارٹ سرجری کے ضرورت مند بچے فیصل آباد اور لاہور کے درمیان شٹل کاک بن کر رہ گئے۔ فیصل آباد چلڈرن اسپتال کی انتظامیہ کہتی ہے بچوں کو لاہور لے جائیں، لاہور والے کہتے ہیں فیصل آباد واپس لے جائیں۔ یہ ماجرا کیا ہے بتا رہے ہیں عزادار حسین۔ چلڈرن اسپتال میں ہر مہینے 5 بچے دل کے آپریشن کے منتظر ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے والدین دل میں آپریشن کی آس لیے جب ہسپتال پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے اکلوتے چلڈرن اسپتال میں ہارٹ سرجن کی سیٹ خالی پڑی ہے۔ والدین کی آس امید اس وقت مزید ٹوٹ جاتی ہے جب انتظامیہ کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے کہ بچے کو لاہور لے جائے۔ کافی مشکلات ہوتی ہیں، ادھر کارڈک سرجن کا ہونا لازمی ہے کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے لاہور کا سفر کرنے میں، اور اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، فیصل آباد ایک بڑی سٹی بھی ہے، تو ادھر ہونا چاہیے، کارڈک سرجن ضرور ہونا چاہیے۔ میں جنگ سے ہی اپنے بانجی کو لے کے آئی ہوں، تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہاں پہ بھی ہارٹ سرجن کا انتظام کیا جائے تاکہ جو دوسرے لوگوں سے شہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں سہولت میسر ہو۔ 6 مہینے کے بچے سے میں لاہور لے کے فیصل آباد ڈاکٹر نہیں ہے آپریشن باہر نہ آپریشن کر رہے ہیں اتنے، تو لاہور لے کے جاتے، لاہور والے کہتے فیصل آباد لے کے جاؤ، ضلع ہاسپٹل لے کے جاؤ، اس طرح لے کے جاتے، علاج نہیں کرتے۔ جن بچوں کو آج فوری آپریشن کی ضرورت ہے وہ 6 مہینے سے چلڈرن اسپتال کے چکر لگا رہے ہیں، صرف اس امید انتظار پر کہ شاید ڈاکٹر کی تعیناتی ہو گئی ہو۔ اس سلسلے میں انتظامیہ بھی بے بس دکھائی دیتی ہے۔ ہماری جو کارڈیک سرجری کی سیٹ ہے، جو کارڈیک آپریشنز والے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل جو ڈاکٹر کی سیٹ ہے وہ ہماری آلموسٹ 1 سال سے خالی ہے، کیونکہ ہم نے یہ سیٹ اسپیشلی کنورٹ کروائی تھی کارڈیک سرجری میں، تو اس کے بعد ابھی تک فی الحال کسی کی تعیناتی نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ لائزون میں ہیں، انشاءاللہ ہم جلد ہی اس سیٹ کو وہ تعینات کروا لیا جائے گا ڈاکٹر کو یہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم ہمارے پاس جو ہے نا 4 سے 5 بچے ہر منتھ ہم ان کو لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں، کیونکہ لیے گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ اس سے بیسٹ آپشن جو پنجاب میں صرف چلڈرن ہاسپٹل لاہور ہی ہے اس ٹائم پر۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان ننھے بریز بچوں کی سانسیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ اگر جلد ہارٹ سرجن کی تعیناتی نہ کی گئی تو بچوں کی سانسوں کی مالا بکھر نہ جائے۔ ماہر امراض قلب کہتے ہیں اگر بچوں کو بر وقت اوپن ہارٹ سرجری کی سہولت فراہم نہ کی جائے تو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ٹرنچ بل ٹیکنالوجی والے بھٹے مکمل پابندی کے باوجود پھر چلنے لگے۔ فیصل آباد شہر میں موجودہ ماحول دشمن بھٹے انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کے لیے بڑا چیلنج بن گئے۔ سیاہ دھواں چھوڑتے بھٹے اسموک کا باعث بن رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں محمد رمضان مرزا کی یہ رپورٹ۔ فیصل آباد شہر کے اندر لگے ماحول دشمن بٹے انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ ریڈ زون میں شامل فیصل آباد شہر میں پرانی ٹیکنالوجی والے بٹے مسلسل سیاہ دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ سرگودا روڈ، ڈائیور روڈ اور ملت روڈ پر چلتے بٹے اسموک کا باعث بن رہے ہیں۔ صدر کے علاقے میں بھی بٹوں کو بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی کے چلایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کے مطابق اسموک کا باعث بننے والے عناصر اور بٹوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سٹی 41 نے جن بٹوں کی نشاندہی کی ہے ان کو سیل کر کے جرمانے کیے جائیں گے۔ سٹیکنگ کے بغیر کام نہیں کرتے۔ جو حکومت نے بلورز انسٹال کروانا، ان کی باقی ساری فزیکل پریپریشنز تھیں وہ کروا لی ہیں، لیکن سم ہاؤ جو مالکان ہیں یا بھٹا آپریٹرز ہیں
वो स्टैकिंग अपनी जिगजैग नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, तो उस पर हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अभी रास्ते में भी मैंने एक भट्टा देखा है और मैंने आई ऑर्डर्ड इट टू बी सील्ड और 50,000 से 1 लाख रुपया तक हम जुर्माना कर रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफे से सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। महंगाई के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पुरानी गाड़ियां कुव्वत खरीद से हुई बाहर, ऑटो पार्ट्स भी हो गए महंगे। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं नई गाड़ियों की कीमत बढ़ने से पुरानी गाड़ियां महंगी हुई हैं। स्पेयर पार्ट्स भी आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगे। कारसाज कंपनियों ने गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। पुरानी गाड़ियां भी महंगाई की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गईं। स्पेयर पार्ट्स 50% तक महंगे हो गए। कीमतें बढ़ने से कारोबारी तबका शदीद परेशान है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमत में इजाफे से दुकानदार परेशानी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि 50% तक स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कारोबार ठप होकर रह गया। पहले से गाहक जो सामान लेता था ना, वो 10,000 में या 20,000 में उसका गाड़ी का काम हो जाता है। अब 50,000 में भी नहीं हो रहा। गाहक में कुव्वत खरीद है ही नहीं। पहले से अब का तकरीबन 50% फ़र्क पड़ गया। इसकी वजह से कारोबार में बहुत मंदा है। कारोबार ज़ीरो हो गया बिल्कुल। हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन सिर्फ कस्टमर आता है, बस बाकी दिन खाली जा रहे हैं बिल्कुल। गाड़ियों की कीमत में इजाफा होते ही स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कारोबारी तबका कारोबार में मंदी का इजहार करता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई के सताए रिक्शा ड्राइवर्स का कान पकड़कर एहतजाज। कहा कान पकड़कर हुकूमत से माफ़ी मांग रहे हैं। महंगाई ने बहुत इजाफा हो चुका है, अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई ने आवाम के कान पकड़ा दिए। रिक्शा ड्राइवरों ने महंगाई से तंग आकर कान पकड़ के एहतजाज किया। ड्राइवरों ने कहा महंगाई से हार कर कान पकड़कर हुकूमत से माफी मांग रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 3 चलान हो गए हैं जी मेरे, दिहाड़ी लगदी कोई नहीं हैगी। बेड़ा गर्क होया इहनूं वोटां पा के साडा ते। महंगाई बहुत हो गई है जी। ते इमरान खान लै के बह गया सानू ते। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा खाने पीने की अशिया की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि खरीदना मुश्किल हो चुका है। जी हमारा मुतालबा यही है, महंगाई को कम किया जाए। इमरान खान ने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं। हम अपने किसी बड़े कोई दवाई लेने जाएं तो वो नहीं लेकर आ सकते। बढ़ती महंगाई ने आवाम को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों ने कान पकड़कर हुकूमत से रहम की अपील कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 10 से 20 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमानी के इजाफे कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने 25 किलोमीटर सफर तक 10 से 20 रुपए का इजाफा किया है, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 50 से 100 रुपए का इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे ने मुसाफिरों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरियों का कहना है कि किराए नामे से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। पहले 400 था, आप 500 लेते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं है ना। गरीब लोग होते हैं, कोई नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन ये ऐसा करते हैं। किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर जिले इंतजामिया ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद में यूनियन काउंसिलों को फहाल तो कर दिया गया, मगर नादरा के साथ मुंसलिक न होने से पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट में मुश्किलात का सामना है। नए यूसी सेक्रेटरीज के पास पासवर्ड ही अपडेट न हो सके। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खालिद महमूद हयात का कहना था कि यूसीज को 2019 की पोजीशन पर बहाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स और उनके डिसीजन की रोशनी में पंजाब गवर्नमेंट ने 17 अक्टूबर को ही यूनियन काउंसिल को तमाम यूनियन काउंसिल को फैसलाबाद की 189 रूरल और 157 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में आती है में उनको 4/5/2019 की पोजीशन पे बहाल कर दिया। और गवर्नमेंट डायरेक्शन के मुताबिक जो उधर एग्जिस्टिंग स्टाफ था पहले डेजोल्यूशन के वक्त, उसी स्टाफ को दोबारा अपने बहाल शुदा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को रिपोर्ट करने की तहरीरी तौर पर हुक्मात आर्डर पास किए जा चुके हैं। और इसके अलावा जहाँ कहीं भी कोई अमला शॉर्ट हुआ है, सरसा में कोई फौत हो गया, सेक्रेटरी रिटायर्ड हो गया है, उसकी जगह पे हमने नया स्टाफ भी पोस्ट कर दिया है। बाकी कुछ जगह पे अभी वो अंडर प्रोसेस है, वो उसमें चेयरमैन साहिबान की रिक्विजिशन को भी हमने कंसिडर किया है। और उसके अलावा जो नादरा का इशू था
हमारे कंप्यूटराइज डेथ बर्थ सर्टिफिकेट जारी होते हैं, उसके बारे में पहले जब उनको चिन्योट के बेघर अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। DHQ अस्पताल में कायम पनाहगाह को बाकायदा फ़ाल कर दिया गया। पनाहगाह में 25 बेड्स और हीटर समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। चिन्योट इंतजामिया ने DHQ अस्पताल में कायम पनाहगाह को बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दिया है। पनाहगाह में बेघर अफराद की रिहाइश के लिए 25 बेड्स और सर्दी से बचाव के लिए हीटर की सहूलत मौजूद है, जबकि मर्दों के अलावा खातीन के लिए अलग रिहाइश का इंतजाम किया गया। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मुमताज अहमद ऐवान ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पनाहगाह को फ़ाल कर दिया गया है। पनाहगाहों का मनसूबा बेघर अफराद के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पनाहगाहें बनाई गई हैं, तो इसमें हमने 20 बेड जो हैं वो मेल के लिए प्रोवाइड किए हैं और 5 बेड जो हमने फीमेल के लिए प्रोवाइड किए हैं, और इसकी सिक्योरिटी और इसकी सफाई बाकी सारा इंतज़ाम वो हमारे अंडर है। इंतजामिया का कहना है कि पनाहगाहों में बेघर अफराद को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है ताकि हुकूमती विजन को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल के खिलाफ शायरों का एहतजाज। शायरा नरगिस रहमत की किताब की रोनमाई तकरीब में बदनज़मी। शोरा का कहना है कि डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल ने इवेंट के दौरान लाइट्स बंद करवा दी। शायरों का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सुमन राय से फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर को हटाने का मुतालबा किया गया। किताब की रुनमाई तकरीबन 1 माह पहले की डिसाइड हो चुकी थी। इन्होंने साथ में एक और शायर हैं, उनकी तकरीबन रुनमाई भी मेरे साथ ही कंबाइन कर दी। तो मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है। वो कहते थे कि मुझे कोई जानता नहीं है, तो नरगिस के लिए सब गेस्ट आएंगे तो मेरी किताब की रुनमाई भी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। आज जो तकरीबन रुनमाई हुई है, तय ये हुआ था सबसे पहले मेरी किताब की होगी, बाद में उनकी अनाउंस की जाएगी। इन्होंने सबसे पहले उनकी किताब की रुनमाई कराई है। मेरे जो गेस्ट इस्लामाबाद से आए थे, झंग से आए थे, लाहौर से आए थे और यहाँ फैसलाबाद से आए थे, सब लोग मेरे लिए आए थे। उनके लिए कोई एक मेहमान भी नहीं आया था। इन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया, स्टेज पे नहीं किसी को बैठने दिया, एक भी चेयर स्टेज पे नहीं लगाने दी जो मेरे अपने लोग थे उनके लिए। उसके बाद हमारी तंजीम का नाम नहीं इन्होंने कहीं भी लिखा, कहीं मेंशन नहीं किया। चेयरमैन का नाम तंजीम के कहीं मेंशन नहीं किया। सारा खर्चा हमने खुद किया। मैंने लाहौर जाना है, सेक्रेटरी से बात करनी है, गवर्नर हाउस जाना है, CM हाउस जाना है और इनके खिलाफ बात करनी है। आर्ट्स काउंसिल हमारी है, राइटरों की है। डॉक्टर रियाज मजीद साहब बहुत नाराज होकर, बहुत गमजदा होकर यहाँ से गए हैं। वो कहते तुम फिक्र ना करो, 2 दिन बाद मेरे पास आओ, हम अपनी आपकी तकरीर दोबारा मैं कराता हूँ, मैं करा दूंगा। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल का कहना है कि मामला शोरा की तंजीमों के दरमियान था। आर्ट्स काउंसिल हमेशा शायरों और अदीबों के साथ खड़ी होती है। तंजीम दूसरी तंजीम की नकाबत को चीफ सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी को पसंद नहीं करते और एतराज़ था कि उसकी तंजीम के बंदे को आपने स्टेट सेक्रेटरी क्यों बनाया, इसकी तकरीब क्यों की। तो इस तरह की इनकी आपस की चपलिश की वजह से इन्होंने बदमज़गी पैदा की। आर्ट्स काउंसिल तो हमेशा शायरों अदीबों के लिए साथ खड़ी होती है, इनकी तकारीब करती हैं, इनके लिए एहतमाम करती हैं। हम लोग अभी बैठक इनके लिए बना रहे हैं। फैसलाबाद का बड़े नाम जो थे डॉक्टर रियाज मजीद साहब इस तकरीब के सदर थे और प्रोफेसर एतबार साजिद। नीली बत्ती कानून के खिलाफ वर्जी पर SHO की पकड़ होगी। बगैर इजाज़त गाड़ी पर नीली बत्ती लगाने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल मुहिम हमने शुरू की है। जो ब्लू लाइट्स जो हैं वो प्राइवेट गाड़ियां, और चाहे वो SHO की हो, DSP की हो, SP साहब की हो, किसी की भी हो, तो जो गाड़ियां ऑथराइज्ड नहीं हैं, जो लोग ब्लू फ्रिक्शनल लाइट जो है लगाने के, उनके खिलाफ हम क्रैक डाउन हम करने जा रहे हैं। हम मीडिया के ज़रिए मैसेज दे रहे हैं उन सब लोगों को जिन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर जो है वो गैर नमूना नंबर प्लेट्स या गैर नमूना जो है वो निशानात या जो दूसरी गाड़ियों से उनको मकसद है कि जो उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं या ब्लू लाइट्स, तो उसकी हम उनके खिलाफ जो है हमने वो ऑपरेशन जो है वो। जंग में पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबजादा मीर सुल्तान की ज़ेर सदारत ज़िले कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। जिला भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शायान जावा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अतीक अकरम और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में जिला भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। तोबा में तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर बुखारी का तबादला हो गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, MPA सईद अहमद सईदी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने अलविदा किया। गुलपाशी भी की गई।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोबा मुदस्सिर बुखारी को तबादले के बाद लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। मुदस्सिर बुखारी ने चार्ज छोड़ दिया और उनके एजाज़ में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत दीगर अफसरान तकरीब में शरीक हुए, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में तकरीब में शिरकत की। मुदस्सिर बुखारी पर कुलबाशी भी की गई, फूलों के हार भी पहनाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में खसरा और रुबेला वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। MPA फिरदौस राय, डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर हिना आयशा, MPS डॉक्टर हबीब बटर समेत दीगर के शिरकत शहरियों की आगाही के लिए रैली भी निकाली गई। चिल्ड्रन अस्पताल में 15 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा और रुबेला वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर MPA फिरदौस राय, डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर हिना आयशा, MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुटर, CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद शहरियों में आगाही के लिए रैली भी निकाली गई। MPA फिरदौस राय ने कहा कि शहरी बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। खसरा और रुबेल से बचाव की ये कौमी मुहिम है और सबसे बड़ी मुहिम है। इसमें 33 लाख लोगों को जो है बच्चों को फैसिलिटेट किया जाएगा और मैं ये समझती हूँ कि पैदाइश से लेके 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये हमें इंजेक्शन लगाने होंगे और मैं समझती हूँ कि लोगों को आगे बढ़ के इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए और 25,000 टीमें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं जो इस तमाम मुहिम की जो है सुपरवाइज करेंगे। डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हिना आयशा ने कहा कि दौरान मुहिम 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। रुबेला के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते इस बीमारी के बारे में, लेकिन ये खसरे ही जितनी कॉमन बीमारी है। तो ऑल्दो जो बच्चे हैं उनको 9 महीने पे और 15 माह पे खसरे का टीका दिया जा रहा है, मगर रुबेला का टीका उनको कभी भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात है, अगर किसी को खसरे की वैक्सीन लग भी गई है, इवन 2 दिन के पहले भी लग गई है, तो वो भी इस कैंपेन में जो है वो हिस्सा ले, इससे उनकी बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद ने कहा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो कतरे भी पिलाए जाएंगे। 33 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 2500 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जिला फैसलाबाद में हमने 33 लाख बच्चों को टारगेट किया जिनको हम मीजल और रुबेला की वैक्सीनेशन करेंगे। उसके लिए हमने 2500 से ज़ायद टीमें तश्कील दी हैं जो यूनियन काउंसिल लेवल पे किट स्टेशन बनाकर लोगों को बच्चों को वैक्सीनेट करेंगी। तो इसमें 9 माह से अपने लेके 15 साल तक की उम्र के बच्चों को ये रुबेला और मीजल की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुटर का कहना है कि वैक्सीन ना लगने से बच्चे मोहल्ले की बीमारियों का आसान हदफ साबित होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। बच्चों को खसरे और पोलियो से बचाने के लिए ग्रैंड मुहिम का आगाज ठंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया और चिन्योट में CO हेल्थ ने मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया ने खसरा और पोलियो के खिलाफ ग्रैंड मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर मंजूर समेत दीगर भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 15 से 27 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, जबकि बच्चों को हिफाजती टीकों के साथ पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 85 यूनियन काउंसिल्स में 850 टीमें तैनात की गई हैं। आज हमने MR कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया है। परसों से हमारी टीमें घर घर जाकर MR कैंपेन के जो हमारे टारगेट बच्चे हैं 9 माह से लेकर 15 साल तक की उम्र के, उनको 12 दिन में ये इंजेक्शन भी लगाया जाएगा और साथ पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। चिन्योट में भी खसरा और पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर DHQ से खत्मे नबुव्वत चौक तक आगाही वॉक भी की गई। CEO हेल्थ के मुताबिक जिला भर में 5,75,064 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, जिसके लिए 424 टीमें तश्कील दी गयी। ये हमारी जो MR खसरा रुबेला मुहिम है ये 15 नवंबर से शुरू होगी और 12 दिनों तक रहेगी, 27 नवंबर तक। इसमें इसका आज इफ्तिताह कर दिया गया है। इसमें जो हमारा टेंटेटिव टारगेट्स है वो 9 माह के बच्चों से लेके 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। साथ साथ उनको MR मीजल रुबेला का टीका भी लगाएंगे और जो बच्चे 5 साल से कम उम्र हैं उनको किट स्टेशनों पे पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे।